Once again, lovely good morning, students. Welcome to LP Savani Riverside School. Students, today we are going to start with a supplementary reader. In that, we are going to start with our first chapter, that is A Tale of Two Birds. Means, in this chapter, we will see a story of two birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. So, here is the story of a mother bird and her two young ones who lived in forest. Then what happened? The mother was killed in a storm. So the mother, she was killed, right? And the young birds, they both were separated from each other and both of them found different home. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. So students, what happened in a forest? Who used to live? A mother bird, right? Mother bird और उसके दो न्यूबॉर्न बेबीज, राइट? उनका नेस्ट कहाँ पे था? घने ट्री में, राइट? बहुत बड़े शेडी ट्री में था, राइट? और वो अपने बच्चों की बहुत अच्छे से केयर करती थी, राइट? वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. क्या हुआ? बहुत तूफान आया. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. तो तूफान में क्या हुआ? बहुत बारिश थी, लाइटनिंग थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, तो उसकी वजह से कुछ पेड़ गिर गए. The tall tree in which the birds lived also came down. जिस ट्री में उनका नेस्ट था वो भी नीचे आ गया, राइट? A big heavy branch hit the nest and killed the bird. क्या हुआ? जब वो ट्री नीचे आया तो उसकी एक ब्रिक जो बड़ी ब्रांच थी उससे नेस्ट को हिट हुआ, राइट? वो नेस्ट के ऊपर गिर गई तो जो मदर बर्ड थी वो मर गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. वो छोटे जो टू बेबीज थे वो इतने छोटे थे कि हवा की तेजी की वजह से वो फॉरेस्ट की दूसरी साइड चले गए, राइट? ब्लू उड़ गए. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उसमें से एक बेबी कहाँ गया? एक केव में गया जहाँ रॉबर्स रहते थे. गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स जहाँ गुंडे रहते थे, राइट? द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे. और दूसरा कहाँ पे लैंड हुआ? एक ऋषि के आश्रम के पास, उससे थोड़ा दूर, राइट? Now what we saw, that there was a mother bird and her two newborn babies. One day a big storm came and destroyed everything. Now what happens? Days passed away and the baby birds become big birds. So जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो ये जो दो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े होते हैं. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. एक दिन क्या होता है, जो किंग था कंट्री का, वो फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए आता है, राइट? तो वो एक डियर देखता है तो वो उसके पीछे भागता है और उसके पीछे भागते भागते वो रास्ता भूल जाता है. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse
and sat down under a tree that stood near a cave. Right? अब क्या होता है, वो जंगल की तरफ पहुंचते पहुंचते वो बहुत थक जाता है. राइट नाउ ही वॉज वेरी टायर्ड. उसने अपने हॉर्स से वो उतरा और एक ट्री के नीचे बैठ गया जो केव के पास था. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक, हरी अप, there's someone under the tree, come and take his jewels and his horse. तो उसे अचानक क्या आवाज सुनाई दी कि ट्री के नीचे कोई है, जल्दी से हम उसकी ज्वेलरी एंड उसका हॉर्स ले लेते हैं. हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो वरना वो चला जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड. ही लुक अप एंड सॉ अ बिग brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. Right? तो वो क्या देखता है कि ये बात कौन कर रहा था, जिस ट्री के नीचे वो बैठा था उस ट्री पे एक बिग ब्राउन बर्ड बैठा हुआ था. राइट वो ये सब बातें सुनता है और वो जल्दी से अपने हॉर्स पे बैठ के वहां से चला जाता है. द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन. ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी. ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच वर्ड. नाउ अभी क्या होता है, सून ही केम टू द क्लियरिंग which looked like an ashram. राइट वो भी कहाँ पहुंचता है, जब वो भाग जाता है ट्री के वहां से तो अभी वो कहाँ पहुंचता है, वो आश्रम के वहां पहुंचता है. राइट वो किसका आश्रम था, इट वॉज द ऋषिज आश्रम. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री and sat down in its shade. Suddenly, he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon." Right? अब जब वो आश्रम पहुंचता है तो वो अपनी हॉर्स को ट्री से टाई कर देता है. राइट सडनली उसे एक आवाज सुनाई देती है. वो आवाज उसे क्या कहती है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज आप अंदर जाके आराम कीजिए, ऋषि थोड़ी देर में आ जाएंगे. देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. ही वॉज अमेज्ड. दिस वन looks like the other bird outside the cave, he said to himself loudly. Right? ये सारी बातें सुन के वो फिर से ऊपर ट्री के पास देखता है तो उसको कौन दिखाई देता है, अ बिग ब्राउन बर्ड, जो किसके जैसा दिख रहा था, सेम उसी बर्ड के जैसे दिख रहा था जो केव के बाहर ट्री था उस पे बैठा था. तो वो अमेज्ड होके वो खुद को ही कहता है कि ये दोनों बर्ड्स तो सिमिलर है. राइट ओके स्टूडेंट्स, for today this much only. Further we'll continue in next session students.